Hello, children. Hope you all are fine and happy. Now, let's revise the chapter number 1 of your science book. Chapter name is Health and Hygiene. Children, health is a state of complete physical and mental well being. A healthy person is one whose body and mind are completely fit. And to stay healthy, we should have balanced diet. And balanced diet contain five components. Five components means carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. So we can say your diet should have five components of food. Our body needs all these components in right proportion to stay healthy. Beside these components, our body also need proper amount of roughage and water. Roughage are the fibers present in our food. They help us to get rid of undigested food. जो undigested waste material होता है उसको आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए कौन हेल्प करता है? रफेज मीन्स प्लांट फाइबर. और वाटर का फंक्शन क्या होता है? वाटर रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर and it also helps in removing waste from the body through sweat and urine. तो पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको बॉडी को क्लीन करने के लिए और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. Now the next topic is disease. A disease is a condition in which our body or a part of it does not function properly. Means body पूरी बॉडी अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है या बॉडी का कोई भी पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम डिजीज़. Disease are generally of two types, non-communicable and communicable disease. Non-communicable diseases वो होती हैं जो spread नहीं होती हैं. The disease that do not spread from one person to another are called non-communicable disease. And communicable disease कौन सी होती है? The disease that spread from one person to another are called communicable or infectious disease. These diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus and protozoa. Non-communicable disease generally caused by the deficiency of any nutrient means deficiency disease भी बोलते हैं उनको. यानी बॉडी में किसी कंपोनेंट की या बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो वो डिजीज़ आपको होने के चांसेस होते हैं. और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं. And children, microorganisms are present everywhere in air, in water and in food. They travel from a sick person to a healthy person. Means जो unhealthy person से वो healthy person तक चले जाते हैं and cause diseases. This happens in the following ways. Or we can say how does a disease spread? Disease कैसे spread होती है? और spread of communicable disease. First is through air. When a sick person coughs, sneezes or spits, germs are released into the air, and when a healthy person breathes this air, the germs enters the body of the healthy person. Means कोई unhealthy person अगर नीज करता है कफ करता है तो वो उसके जर्म्स रिलीज़ होते हैं उसकी बॉडी से और वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आके उसको भी बीमार करते हैं. तो ये हो गया थ्रू एयर. थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मीन्स अगर आप गंदा खाना खाते हो जिसमें जर्म्स हैं तब भी आपको बीमार होने के चांसेस होते हैं. थर्ड होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट. डायरेक्ट कांटेक्ट से मीन्स अनहेल्दी पर्सन के टच में आते हो आप या फिर उसके क्लोथ्स के टच में आते हो तो यू मे गेट इन्फेक्टेड. एंड थ्रू इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो है या फिर फ्लाइज होती हैं जो मक्खियाँ होती हैं उसके थ्रू भी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं. वो अनहेल्दी पर्सन से आप हेल्दी पर्सन के ऊपर जाते हैं. या फिर जो मलेरिया होता है वो जैसे ब्लड सक करता है मॉस्किटो और वो ब्लड सक किया और स्टिंग दूसरे की बॉडी में एंटर करता है तो उसको भी मलेरिया या डेंगू के चांसेस होते हैं. नाउ हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं या उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी शुड बाथ डेली विथ सोप एंड क्लीन वाटर टू कीप आवरसेल्फ क्लीन. Our house should be disinfected or clean. Drinking water should be clean and pure. Surroundings should be neat and clean. Garbage should always be kept in covered bins क्योंकि garbage जब भी आप खुले में फेंकते हो तो उसमें से germs आते हैं प्रोड्यूस होते हैं और वो आपके घर के अंदर आते हैं. Children should be vaccinated timely against diseases like tuberculosis, diphtheria and hepatitis. तो जो communicable disease है जो वायरल डिजीज़ है उसके लिए बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराना चाहिए.
नाउ व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या होता है? Vaccination is a way of preventing communicable diseases. Vaccines are made up of small quantities of dead or weak germs of a particular disease. Some common vaccines that are given to all children are polio vaccine, DPT vaccine, and MMR vaccine. वैक्सीन क्या होता है? जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनसे बचने के लिए पर्टिकुलर डिजीज़ के ही वीक या फिर डेड जर्म्स किसी की बॉडी में एंटर किए जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, फिर बॉडी को इम्यून बना देते हैं वो, जिससे कि वो डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हाइजीन. हाइजीन में बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ. मीन्स साफ सफाई अपनी बॉडी की, अपने सराउंडिंग्स की, उसको बोलते हैं हम हाइजीन. तो पर्सनल हाइजीन कौन सा होता है? वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट. We should bath daily. We should brush our teeth twice a day. We should cut our nails and hair also regularly. Kitchen, floor, toilet and bathroom should be cleaned with disinfectants regularly. We should always keep the food properly covered and we should keep our surroundings clean. So these are the some points of hygiene. Now exercise. एक्सरसाइज क्या होती है? मीन्स बॉडी से जो आप फिजिकली कोई भी वर्क करते हो उसी को एक्सरसाइज बोलते हैं. सो वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी एंड फिट. आप इसके लिए घर के काम भी कर सकते हो, हाउस होल्ड वर्क भी कर सकते हो, साइकिलिंग हो गई, योगा, प्लेइंग, एनीथिंग यू कैन डू. क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट होती है और वो आप बीमार नहीं पड़ते हो. अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्वेट रेस्ट. एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, हाइजीन, वैक्सीनेशन, इसके बाद में क्या होता है? रेस्ट भी ज़रूरी है. प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए सारी चीज़ों के अलावा. अगर रेस्ट नहीं करते हैं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं. एंड द लास्ट इज पॉस्चर. पॉस्चर क्या होता है? द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव. वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वी मस्ट कीप आर बैक स्ट्रेट. यानी कि आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. या आप खड़े हो रहे हो, चाहे आप स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. अगर आप झुक के पढ़ते हो तो आपकी बैकबोन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, आपकी आइज़ भी इससे अफेक्टेड होती है. मीन्स पूरी बॉडी का जो पॉस्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं लगती है. So students, you can adopt these simple habits, good habits, through which you can keep your body fit and healthy. So revise the chapter thoroughly for periodic test. Thank you.